Hello students, good morning. In this video, we shall learn Introduction to Ubuntu Linux Chapter 6 Standard 9 और ये जो पार्ट है ये पार्ट 5 है। उसके पहले हमने पार्ट 4 फिनिश किए हैं। In this video, we are going to study about basic of Ubuntu Linux. So let's start. Basic concepts of Ubuntu Linux. To use Ubuntu on a regular basis, one needs to install Ubuntu. Usually, installing a new operating system requires that a separate partition on the disk be made available for exclusive use by that operating system. The installation procedure involves formatting the partition and creating a new file system on it. If we have a spare partition or want to use Ubuntu as only operating system, then we may install Ubuntu in a partition in this manner. However, sometimes users who already have Microsoft Windows operating system on their computer do not have a spare partition or do not want to disturb their existing operating system setup. While it is certainly possible to have a multi-boot setup where the hard disk has different operating system on different partition and the user gets to select which operating system they want to start at boot time, having such a setup requires some technical skill. So in this slide it is said, ये स्लाइड में कहना चाहते कि अगर आपको उबंटू लिनक्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ करें उसको सपोज़ आप यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट ओएस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो उसको अगर आपको उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है तो आपको जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक स्पेसिफिक पार्ट्स यानी कि एक पार्टीशन बनाना होता है और उसमें आप उसको यूज़ करते हो। सो व्हेन एट द टाइम ऑफ बूटिंग जब भी आप अपना जो भी अपनी सिस्टम जब स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो उबंटू लिनक्स यूज़ करनी है या माइक्रोसॉफ्ट वो भी आपको पूछा जाएगा। तो उस टाइम पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे लिनक्स को चूज़ कर सकते हो। बट यू मस्ट हैव सम टेक्निकल स्किल टू डू इट। आपको सम जो भी टेक्निकल स्किल उसको आनी चाहिए, तभी आप पार्टीशन बना के एक ही मशीन पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। Ubuntu makes it very easy to install Linux on a Windows machine by providing a special installer called Wubi, window-based Ubuntu installer. Wubi does not require a separate partition for Ubuntu and install Ubuntu right inside the Windows partitions by reserving a certain amount of disk space for it. अदरवाइज इफ़ यू डोंट वांट टू डू, अगर आपको ऐसा पार्टीशन नहीं बनाना है तो आप एक विंडोज़ ऑपरेटिंग जो भी वो भी आता है वो विंडोज़ बेस्ड उबंटू इंस्टॉलर होता है और वो अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको पार्टीशन बनाना नहीं पड़ता है, आपको एक सेपरेट स्पेस वहाँ पे दी जाती है। Hence, one may install and uninstall Ubuntu with minimum changes to one's Windows installations. This is extremely convenient and useful for those Windows users who are not yet ready to take the plunge into Ubuntu. Ubuntu can also be installed a USB flash disk pen drive or external hard disk and run straight from them. If the computer supports booting from USB, all newer computers do. और अदरवाइज़ आप अपनी जो USB पेन ड्राइव आती है USB पेन ड्राइव उसमें भी आप उबंटू का सेटअप है वो रख सकते हो और जब भी चाहे आप किसी भी मशीन को उसको इंस्टॉल करके रन करवा सकते हो। In large organizations with a dedicated IT team, it is also possible to boot Ubuntu from the network without installing it on the local machine. और जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नेटवर्क के थ्रू भी अपना जो इंस्टॉलिंग होता जो भी उबंटू है वो चला सकते हैं। दिस इज़ फॉर आपको उसके आपके स्पेसिफिक मशीन में आपके जो भी पीसीए यूज़ करते हो उसमें आपको उबंटू इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। Here, when you start your Ubuntu, this is the first screen that you can see, Ubuntu splash screen. आप जब भी Ubuntu स्टार्ट करते हो तो ऐसी आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। If we have a multi-boot configuration, the boot manager may display a choice of operating systems. Once we select Ubuntu start its own bootloader, it is also possible to have multiple Linux versions as well as other non-Linux operating system on a single computer. Hence, depending on the configuration, Ubuntu may display a list of choices to allow us to select the operating system or the Linux kernel version we want to boot to.
आफ्टर दैट इट डिस्प्लेज अ स्प्लैश स्क्रीन एज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। आप जब भी अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसमें मल्टीबूट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। मीन्स जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसको स्टार्ट टाइम में जो भी आप स्क्रीन देखते हो तो उससे बोलते हैं बूटिंग। सो बूटिंग के दौरान आपको जब भी बूटिंग करते हो तो उसके बाद आपको जो भी आपकी मशीन में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुई है, सपोज़ उबंटू की भी कई सारे वर्जन अगर इंस्टॉल है तो वो भी आपको सब कुछ दिखाएगा। आपको जो भी यूज़ करना है, आपको जो भी ओपन करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली उस उबंटू वर्जन को और उस उबंटू के लिए उबंटू लिनक्स यानी जो भी वर्जन यूज़ हुआ है, अदरवाइज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट योर उबंटू दिस स्क्रीन यू कैन सी, आप जब भी आप उबंटू अपना स्टार्ट करेंगे तो ऐसी एक लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। उसमें यहाँ पे जो भी एक एडमिन का नाम दिया गया है, पासवर्ड है, कैंसिल है और लॉगिन का दिया गया है। Once the operating system is fully loaded and ready to use, it may present us with a login screen as shown in previous slide. जब भी आप फुल्ली लोडेड कर देते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको जो भी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाई दिया ऐसा एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगा। लिनक्स सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एंड इम्प्लीमेंट security to ensure that one user cannot disturb the other user. This authentication verifying who you are becomes necessary. You will be accepted as a particular user only if you provide the correct password for the username selected by you. If you are an only user of the system, you may set up automatic login without asking for the password. आपको जो भी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई गई उसमें एक जिग्नेश जो लिखा था वहाँ पे उसको मीन्स वो एक यूज़र था। तो आप अपना यूज़र आईडी ऐसे क्रिएट कर सकते हो और प्रॉपरली अगर आप पासवर्ड देते हो तो आप उसको लॉगिन कर सकते हो। आप अपना जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो उबंटू का वो आप यूज़ कर सकते हो। You may also select here your language and the desktop shell you want to use because Linux support multiple languages and desktops. अगर आपको लिनक्स में मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, सपोज इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी अगर आपको यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट काइंड ऑफ डेस्कटॉप भी आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर फिजिकली चैलेंज इन सम वे लाइक यू कैन नॉट सी और हैव डिफिकल्ट इन टाइपिंग और यूजिंग द माउस, यू मे सिलेक्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक अ हाई कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन फॉर दोज विथ लिमिटेड विजन or a screen reader, a software that speaks aloud the text on the screen for those who cannot see at all. इफ़ यू हैव सम डिफ़िकल्टी, सपोज़ आपको अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, अदरवाइज़ आप अच्छी तरह से टाइपिंग नहीं कर सकते हो, तो जो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको ऐसी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो भी बोलते हो वो ऑटोमेटिकली टाइप होता है और आपको जो भी स्क्रीन जो भी आप ओपन करते हो वो आपको वॉइस के मैसेज के द्वारा आपको सुनाई भी देता है कि इस टाइम आपने ये यूज़ किया है, ये विंडोज़ ओपन की है। तो दिस इज़ द फैसिलिटी इज़ स्पेशली प्रोवाइड for physically challenged and those who can't see properly. Once you log into the system successfully, you will be greeted with the desktop similar to the shown in the next slide. जब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे तो आपको ऐसा एक लॉगिन स्क्रीन, ऐसा एक उबंटू का डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाई देगा। दिस इज़ यू कैन सी हियर, ये उबंटू का एक डेस्कटॉप सीन है जो कि वर्जन है 10.04। 10.04 का वर्जन है, इसलिए आपको ये डेस्कटॉप ऐसा दिखाई देगा। प्लीज़ नोट दैट द स्क्रीन शोन इन द फिगर pertain to the Ubuntu 10.04 LTS version. Screens for the other versions may look somewhat different. ये जो हमारी स्क्रीन है वो 10.04 वर्जन है, LTS वर्जन है, दैट्स वाई ये ऐसी दिखती है। अगर आपने दूसरा कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसकी स्क्रीन थोड़ी अलग हो सकती है। When you do not properly shut down or if electricity went out while you are working on your system, when you do not shut down properly the data will be lost also. जब भी आप प्रॉपरली शट डाउन नहीं कर सकते हो, जब भी प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते हो तो क्या होता है कि वैन एवर वी यू विल ओपन इट विल नॉट ओपन प्रॉपरली, आप ओपन भी नहीं होगी प्रॉपरली और थोड़ा डेटा भी लॉस्ट होने की चांसेस रहते हैं। अदरवाइज़ जब आप वर्क कर रहे हो और उस वर्क के दौरान इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, इलेक्ट्रिसिटी
चली जाती है तो उस टाइम पे भी आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस रहते हैं। When we shut down properly, all running programs are terminated and any unsaved data still in main memory are returned back to the disk before turning off the computer। जब आप प्रॉपरली शट डाउन करते हो तो क्या होता है कि जो भी आपने प्रोग्राम्स ओपन किए वो सभी एंड हो जाएंगे, वो सभी अपने आप क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और जो भी डेटा है वो प्रॉपरली उसकी जो भी डेटा फाइल होती है उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको जो भी डेटा लॉस होने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। So students, here we have finished our lesson, our part of this video, and next part we shall learn something more about this Ubuntu Linux. Till then, goodbye.